Hi guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Today I'm going to upload the second part of the second lesson of Supplementary Reader, The Judgment Sheet of Vikramaditya, penned by Sister Nivedita. So without wasting time, let's come on to the text. Others saw the finite ones and whispering among themselves, quickly picked up some quarrel and appeared before him. दूसरे बच्चों ने उस खेल को तुरंत देखा और आपस में कुछ कानाफूसी करते हुए, मध्यम स्वर में बात करते हुए जल्द से कोई झगड़ा तैयार किया और उसके सामने प्रस्तुत हो गए. Each group stated their case. One saying that the certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. हर एक समूह ने अपनी अपनी बात, अपना अपना मामला कहा. एक समूह कहता था कि कोई खेत उनका था और दूसरा कहता था कि ऐसा नहीं था, और इसी प्रकार से दोनों समूह अपनी अपनी बात कहते रहे. They all wanted him to settle the dispute. वे सभी उससे झगड़े का निपटारा चाहते थे, झगड़ा सेटल करना चाहते थे. But now all of a sudden a strange thing made itself felt. लेकिन अब यकायक एक विचित्र वस्तु ने अपना अनुभव करवाया. The boy who appeared so common before he sat on the mount looked so different now. वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले इतना साधारण दिखाई देता था, वही लड़का अब इतना अलग दिखाई देता था. He had become grave and serious, and his tone and manners were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. वह अत्यंत गंभीर हो गया और उसकी आवाज और काम करने का ढंग इतना अजीब और प्रभावशाली हो गया कि बाकी के बच्चे थोड़ा बहुत डर गए. Still they thought it was a fun, and once more they put up a fresh case before him, and once more he gave his judgment. अब भी वे बच्चे समझते थे कि यह एक खेल ही था, और एक बार फिर से उन्होंने एक ताज़ा मामला उसके सामने प्रस्तुत किया, और एक बार फिर उसने अपना निर्णय दिया. And this went on for hours and hours together, he sitting on the mount, on the judge's seat, listening to the complaints and pronouncing the sentences with the same gravity, till it was time to return. और यह कई घंटे साथ साथ चलता रहा. वह न्यायाधीश के आसन पर बैठकर लोगों की शिकायतें सुनता था और दंड निर्धारित करता था, उसी गंभीरता के साथ जब तक कि घर लौटने का समय न हो गया. And then he jumped down from his seat and was just like any other cowherd. और फिर वो आसन से उछला, अपनी जगह से उछलकर नीचे आया और ठीक दूसरे चरवाहों जैसा हो गया. From then onward, so famous did the cowherd boy become that all the complicated disputes were put before him. तब से आगे तक वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि सभी जटिल मामले, सभी जटिल झगड़े उसके सामने लाए गए. He always the same thing happened. और हमेशा एक ही बात हुई. The spirit of knowledge and justice would come to him and he would show them the truth.
ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी और वह लोगों को सत्य दिखा देता था। But when he came down from his seat, he would be no different from the other boys. लेकिन जब वह आसन से नीचे आता था तो वह दूसरे बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं होता था। Gradually this news spread throughout the countryside. धीरे धीरे यह समाचार पूरे देश में फैल गया। Grown up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. So gradually this news is spread through the countryside. धीरे धीरे यह समाचार देहात की ओर फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन, बड़े बड़े पुरुष और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेज, सभी गांवों से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, अपने मामले लाते थे, इन द कोर्ट ऑफ काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे की अदालत में, एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और सदैव वो एक ऐसा निर्णय पाते थे, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिसे दोनों दल समझ जाते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस तरह से संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग ऑफ उज्जैन हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन heard this story. Well, he said, that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। इस समय राजा, जो कि उज्जैन से दूर रहता था, ने इस कहानी को सुना और उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट, वह लड़का निश्चित में बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पे, विक्रमादित्य के न्यायासन पे। तो अब राजा, जो कि उज्जैन से दूर रहता था, ने यह कहानी सुनी और उसने कहा कि वह लड़का निश्चित ही विक्रमादित्य के न्यायासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, एज द रूइंस अबाउट द मीडो वर वंस विक्रमादित्य पैलेस। राजा का अंदाजा सही था, जैसा कि चरागाह के आसपास के खंडहर किसी समय विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करते थे। If just sitting on the mount brings wisdom and justice to a shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be a just king. He thought, राजा ने सोचा, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, अगर केवल बैठने मात्र से ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू ए शेफर्ड बॉय, किसी चरवाहे में बुद्धिमानी और न्याय आ जाता है, तो लेट्स डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो हमें गहराई तक खोदकर उस न्यायासन को पा लेना चाहिए। I too shall sit on it, मैं भी उस पर बैठूंगा, and hear all the cases, और सभी मामले सुनूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well, फिर विक्रमादित्य की आत्मा उसी प्रकार मेरे अंदर उतर जाएगी, and I shall always be a just king, और मैं सदैव एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। So with the spades and shovels, the grassy knoll where the boys played was overturned. इस प्रकार कुदालों और सब्बलों से the grassy knoll, चरागाह,
वेयर द बॉयज प्लेड, जहां की लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड, पलट दिया गया या खोद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज वाज sorrowful. He felt that something very dear to him was being taken away. वह लड़का जो स्वनिर्मित न्यायाधीश बना था, दुख से भरा हुआ था। वह अनुभव करता था कि उसकी कोई सबसे प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही थी। At last the laborers came on something. अंततः श्रमिक किसी चीज पर पहुंच गए। They uncovered it and found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. उन्होंने इसे खोला और काले संगमरमर की एक पटिया प्राप्त किया जो कि 25 पाषाण देवदूतों के पंखों और हाथों पर सजी थी, संतुलित थी। तो अंततः श्रमिक किसी चीज पे पहुंच गए। उन्होंने उसको खोला और एक काले संगमरमर की पटिया प्राप्त किया जो कि 25 पाषाण देवदूतों के हाथों और पंखों पर संतुलित थी। Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य। निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्यायासन थी। With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. बड़े समारोह के साथ इसे नगर लाया गया और न्याय के कक्ष में रखा गया। The king ordered his people to observe 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन का प्रार्थना और उपवास रखने का आदेश दिया और घोषणा किया कि चतुर्थ दिवस वो सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। At last the great morning came and crowds assembled to see the king take his seat. अंततः वह महाप्रभात आ गया और भीड़ राजा को उसका आसन ग्रहण करते देखने को एकत्रित हुई। Walking through the long hall came the judges and the priests of the kingdom, followed by the king. Then as they reached the seat of judgment, they parted into 2 rows, and the king walked up in the middle, bowed his head in reverence, and went straight to the marble slab. एक लंबे हाल से चलते हुए साम्राज्य के पुरोहित और न्यायाधीश आए, फॉलोड बाय द किंग, और राजा उनके पीछे पीछे आया। एज दे रीच्ड द जजमेंट सीट, जब वे न्यायासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 रोज, वे 2 कतारों में विभक्त हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चला। वोड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान से अपना शीश झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे संगमरमर की पटिया के पास पहुंच गया। When the king was about to sit on the throne, one of the stone angels began to speak. जब राजा आसन पर बैठने ही वाला था, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, देवदूतों में से एक ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, इट सेड,
Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of Vikramaditya? Have you never desired to rule over the kingdoms that were not your own? It said, उस पाषाण देवदूत ने कहा, स्टॉप, ठहरो. डू यू थिंक, क्या तुम समझते हो, दैट की यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तुम विक्रमादित्य के न्यायासन पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर द किंगडम्स, क्या तुमने कभी भी उन साम्राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारी अपनी न थी? फॉर ए वाइल द किंग कुडंट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़ी देर तक तो राजा किसी उत्तर के बारे में सोच ही न सका. ही न्यू दैट हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्याय से भरा हुआ था. आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस he spoke no. He said, I am not worthy. Stop, it said. उसने कहा, ठहरो. Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या तुम समझते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्यायासन पे बैठने के योग्य हो? Have you never desired to rule over the kingdoms that were not your own? क्या तुमने कभी भी उन साम्राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारी अपनी न थी? फॉर ए वाइल द किंग कुडंट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़ी देर तक तो राजा किसी उत्तर के बारे में सोच ही नहीं सका. ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण था. आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक नो. ही सेड, आई एम नॉट वर्दी. एक लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, नहीं. उसने कहा, मैं योग्य नहीं हूं. Go then and fast and pray for 3 days, said the angel, so that you may purify yourself to be worthy to sit on the throne. तो फिर जाओ और 3 दिन तक प्रार्थना और उपवास करो, देवदूत ने कहा, जिससे कि तुम अपने को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको. विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे. इन्हीं शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया. द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड फास्टिंग to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य. राजा ने स्वतः को प्रार्थना से, उपवास से दोबारा आने के लिए तैयार किया और विक्रमादित्य के न्यायासन पर बैठने के लिए अपने आप को तैयार किया. बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी वही चीज हुई. Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. दूसरे पाषाण देवदूत ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी भी दूसरों की संपत्तियों पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की. The king admitted that he had done so, and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया था, इसलिए वह सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था. In this way, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an stone angel and had to withdraw. इस प्रकार से जब कभी भी राजा ने सिंहासन को ग्रहण करने का प्रयास किया, वह किसी पाषाण देवदूत द्वारा प्रश्नित हुआ और उसे वापस लौटना पड़ा. This went on till only one angel was left supporting the marble slab.
ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि केवल एक ही देवदूत उस संगमरमर की पटिया को संभाले हुए बचा था। The king went near the throne with great confidence, for he felt sure of being allowed to take his place that day. राजा सिंहासन के निकट बड़े ही भरोसे के साथ पहुंचा, क्योंकि वह आश्वस्त था कि उस दिन उसे अपना स्थान लेने की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। But as he came near the seat, the last angel spoke, "Are you then perfectly pure in heart, O king? Is your heart as pure as that of a little child? If so, you are indeed worthy to sit on his seat." लेकिन जब वह आसन के निकट आया तो आखिरी पाषाण देवदूत बोला, "ओ किंग, हे राजन, आर यू परफेक्टली प्योर इन हार्ट? क्या तुम हृदय से पूर्ण शुद्ध हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड? क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है जितना कि उस छोटे बच्चे का था? इफ सो, अगर ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो निश्चित ही तुम उसके आसन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली। राजा ने बड़े ही धीरे से कहा, नहीं। नो, आई एम नॉट वर्दी। नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल flew up into the sky bearing the slab on his head. और इन शब्दों पर देवदूत अपने सर पर संगमरमर की पटिया लेकर आकाश में उड़ गया। This was how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth forever. तो इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्यायासन इस धरती पर से सदैव के लिए विलुप्त हो गया। इट वॉज ऑल। होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, वॉच इट अगेन एंड अगेन फ्रॉम हेड टू टो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।